हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो 20 प्रश्न आ जाए यूपीएससी में सीएसई मेंस 2025 जीएस पेपर 2, इन सभी 20 प्रश्नों का एक जनरल डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं कि उस माहौल में जहाँ पे 3 घंटे में 20 क्वेश्चन किसी विद्यार्थी को करना है और प्रिज्यूमेबली ही इज़ अ गुड स्टूडेंट और सी इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो उस उत्तर में क्या क्या मिनिमम होना चाहिए। अगर पूरे नेचर ऑफ पेपर की बात करें तो बहुत वर्षों बाद यूपीएससी ने पारंपरिक प्रश्नों की तरफ अपने रुख को मोड़ा है। ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये बहुत हर्टनिंग है क्योंकि हम जो क्लास में पढ़ते हैं या फिर जनरली हम जानते हैं वो आया है, करंट अफेयर्स है लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा कम है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर को कि इसमें क्या क्या लिखा गया है या फिर क्या क्या लिखने से एग्जामिनर को सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट विद पहला क्वेश्चन आज के पेपर का है। ठीक है, आई विल रीड इन इंग्लिश बिकॉज दैट विल मेक द थिंग्स मोर क्लियर। डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस for the purpose of representation of People Act 1951. First part of question is discussion. Analyze is the second part. Whether the increase in assets of legislators disproportionate to their income would constitute undue influence. Now the point is, students को ये पता होना चाहिए कि undue influence is a prohibition under corrupt practices of the RPA 1951. So now what we will be write in the exam. Our constitution in article 101 लिखना पड़ेगा, article 101 provides the grounds for disqualification of any person or the member of the parliament from remaining the member of the parliament. Many grounds have been given in article 101, but the fifth ground of article 101 clause 1, that is 101 clause 1 subclause E, says that any other disqualification prescribed by any law made by parliament. Now, the Representation of People Act 1951 contains certain disqualification criteria, which is the supplementary part of article 101 clause 1 subclause E. After this, if we read the Representation of People Act, they have various kind of corrupt practices mentioned in the law. For example, corrupt practices related with election, like bribing the voters, number 1. Undue influence, number 2. And what is the meaning of undue influence? Undue influence is pressurizing on the name of, you can say, rituals, in the name of social exclusion or inclusion, in the name of some magical or other kind of fear or favor, or some promises which are so impractical in nature. So undue influence is also considered a corrupt practice. At the same time, creating hatred against anyone or between communities, between the caste or something like that, is also the part of corrupt practices related to the election. इतना लिखने के बाद you will write very clearly that the Supreme Court has also on multiple occasions has established that any candidate promoting enmity or canvassing, trying to take vote in the name of caste or religion, or creating exclusivity on this basis could be the ground for his disqualification from the election. In 2013, Subramaniam Balaji case, though Supreme Court did not give any ratio
any binding law, but Supreme Court advised the Election Commission of India that freebies promising too much to the electorates by the political parties should also be included in the undue influence, though the matter itself is not clear yet. We can say that freebies could also be a kind of undue influence. So one thing is very clear, that undue influence on the voter prevents the voter from exercising his or her independent thought before deciding whom to give vote. Hence, it is considered anti-democratic in nature. Now, coming to the second part, analyze whether the increase in the assets of the legislators. अगर हम ये देखें कि एमपी और एमएलए लोगों का जो आय है, संपत्ति है, उसकी ग्रोथ रेट इंडिया में बाकी किसी भी और वर्ग के लोगों से ज्यादा है. डेफिनेटली कागज पे लीगली सब सही है, या शायद ऑडिट नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत कम ही ऐसे निर्धन व्यक्ति भारत में होते हैं जो एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ते हैं. और कहीं गलती से किसी पार्टी ने ऐसे कम संपत्ति और आय वाले व्यक्ति को टिकट दे भी दिया, देन एक बार बनने के बाद उनके इनकम में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो जाती. सो द क्वेश्चन इज सेइंग, should we include disproportionate asset as undue influence? अब ये आपसे सजेशन मांग रहा है. अब पॉइंट है कि अगर केस इस्टेब्लिश्ड हो गया कि डिस्प्रपोर्शनेट एसेट है अगर हमारे किसी लेजिस्लेटर का, तो इन इटसेल्फ इट इज अ क्राइम अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट. तो उसके अंदर तो उसकी कार्रवाई होनी ही होनी चाहिए. अब अगर उसके अंदर वो कार्रवाई नहीं होती तो किसी की संपत्ति ज्यादा है, बिना प्रूफ किए आप अनड्यू इन्फ्लुएंस में कैसे प्रूफ करेंगे? प्रोसीजरल चैलेंजेस हैं इस बात, प्रोसीजरल चैलेंजेस. बट डेफिनेटली गलिबल पीपल मीन्स मासेस इनोसेंट होते हैं, या मासेस एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं. तो अगर किसी के पास धन बहुत ज्यादा है, तो जिसके पास धन नहीं है यानी कि मासेस, उनके प्रभाव में आना उनके लिए थोड़ा आसान. तो डेफिनेटली चुनाव में धन के दुरुपयोग को रोकने का जो वेरियस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की चर्चा चलती है, उसमें से एक ये जो सुझाव इस प्रश्न में दिया गया है कि जिसके पास डिस्प्रपोर्शनेट एसेट है उसको हम लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस मान सकते हैं. ये बुरा आइडिया नहीं. बट अगेन, इफ वी रियली वांट टू इम्प्लीमेंट दिस, देन वी मेक more meaningful use of income tax act, more meaningful use of prevention of corruption act, money laundering act. और जब वो तीनों में तीत आएगा और उसमें सजा हो जाएगी, तो वैसे ही वो एमएलए और एमपी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. और बाकी अगर हम इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस में यूज करना चाहते हैं तो कोई घाटा नहीं है, क्योंकि अभी भी भारत में एक परंपरा ऐसी बनती जा रही है कि द रिच कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन हैव 3 times more chances to win the election than the not so rich candidate in the same election. तो इसके लिए इसको रोकने की आवश्यकता है, और इन सब बातों को मिला के आप इसका एक अच्छा उत्तर क्रिएट कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स. नीड ऑफ एडमिट, तो हमारा आंसर होगा नीड पहला, और नीड इसका भी बताना है लेकिन कोर्ट से कंपेयर करके बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज दिस, तो नीड इन कंपैरिजन विद द कोर्ट. तो नीड क्या क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का? 5-6 चीजें कोई भी मेंस लिखने वाला स्टूडेंट इजीली लिख सकता है. पहले यह है
स्पीडी जस्टिस, इनएक्सपेंसिव जस्टिस, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का एक्सपर्ट सोल्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल एक्सपीरियंस का परफेक्ट मिक्स होता है। प्रोसीजरल लॉज इतने टफ नहीं होते हैं, वकील वकालतों का इतना चक्कर इसमें नहीं रहता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड बॉडीज होने के चलते एक ही तरह के केस इनके पास आता है, इसके चलते दे कैन डू अ वेरी गुड जॉब। नाउ इन कंपैरिजन टू द कोर्ट सिस्टम फॉलोज द फुल यूज ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, एडवोकेट्स एक्ट, तो प्रोसीजरल बातें उसमें बहुत ज्यादा होती हैं। दूसरा, जजेस के पास सभी तरह के केसेस एक ही साथ चलते रहते हैं, एंड डेफिनेटली जजेस मे नॉट बी द एक्सपर्ट इन द एरिया लाइक ट्राइब्यूनल मेंबर्स एंड चेयरमैन, राइट। और कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी बर्डन बहुत ज्यादा है, जुडिशियल पेंडेंसी ऑफ केसेस। इन्हीं चक्करों में हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की आवश्यकता महसूस किया गया। इसके बाद आप लिखेंगे, इस बात को फील करते हुए 42nd अमेंडमेंट 1976 ने देश में ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश करने के लिए 2 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल डाले, 323 ए एंड 323 बी। 323 ए तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना देता है, और 323 बी अदर ट्राइब्यूनल्स अगर आपको बनाने हैं जैसे एनजीटी, तो पावर देता है संसद को या स्टेट को कि वो लोग 323 बी में ऐसा काम कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट भारत में बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स बनाए गए, जिसमें से कुछ ने अपना जो पर्पस था पूरा किया, बट ज्यादातर ने नहीं किया। अब नहीं किया के चक्कर में सेकेंड पार्ट ऑफ हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? assess the impact of recent tribunal reforms। अब recent कौन सा recent बता दिया है, 2021 ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स। तो इसमें आपको 75 वर्ड्स के आसपास तक, 150 वर्ड का ही क्वेश्चन है, तो 75 वर्ड के आसपास तक व्हाट यू विल डू इज you will write the details of the tribunal reforms of 2021। अब यहाँ पे 4-5 पॉइंट पहले उठाना है कि ट्राइब्यूनल्स चूंकि आधे कोर्ट हैं और आधे प्रशासन है, और ये न्यायिक कार्य कर रहा है, फैसला दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जुडिशियरी का पार्ट। मद्रास बार एसोसिएशन केस 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया कि द जुडिशियल इंडिपेंडेंस एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 2015 से चल रहा है, दैट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया। हेंस अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल, their service conditions, their tenure has to be on the recommendations or engagement of the collegium, basically CJI। अब the parliament means the government felt that this such a complex system of making and breaking tribunal is making them ineffective। Hence they brought tribunal reforms in 2021। अब क्या क्या रिफॉर्म किए, 4-5 लिख देना है। जैसे पहला रिफॉर्म किया कि 8 अपीलेट ट्राइब्यूनल खत्म कर दिया, क्योंकि उनके पास खुद ही इतना ज्यादा केस पेंडिंग था या उनकी आवश्यकता नहीं थी, तो ओरिजिनल पर्पस जो था पेंडेंसी ऑफ केसेस, उसको फुलफिल करने का कोई मतलब नहीं चल रहा था। और इन सब का जो ज्यूरिसडिक्शन था, जो 8 ट्राइब्यूनल्स खत्म करे, लाइक सेंट्रल फिल्म अपीलेट बोर्ड, हाईवे अपीलेट ट्राइब्यूनल, इन सबको उठा के दे दिया किसको? हाई कोर्ट को। तो ज्यूरिसडिक्शन तो हाई कोर्ट को दे दिया, तो बेसिक पर्पस जुडिशियल इंडिपेंडेंस वाला तो ट्राइब्यूनल खत्म करने से सिद्ध हुआ कि नहीं,
लेकिन हाई कोर्ट पे बर्डन बढ़ गया। दूसरा चेंज ये किया कि रिमूवल और अपॉइंटमेंट प्रोसेस को गवर्नमेंट ने लगभग पूरे तरीके से अपने हाथ में ले लिया। सो अपॉइंटमेंट और पनिशमेंट मीन्स रिमूवल ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल्स जो बच गए, 16 ट्राइब्यूनल बच गए, उनके लिए सर्च कम सिलेक्शन बॉडी बनाई गई और उस सर्च कम सिलेक्शन बॉडी में सीजेआई या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई वैसा जज रहता है, रिटायर्ड या एग्जिस्टिंग। लेकिन जो बाकी 4 मेंबर हैं वो ब्यूरोक्रेटिक और गवर्नमेंट के। अब इसी रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट चैनल चेयरमैन और मेंबर्स बनाएगी। somehow it has become political, as Supreme Court said in Madras Bar Association case. इसकी कई लोगों ने आलोचना की है कि ठीक नहीं। दूसरा, टेन्योर 4 इयर्स कर दिया। तो पहले टेन्योर था कि थोड़ा लंबा था, अब टेन्योर को 4 इयर्स कर दिया गया। और दूसरा जो एज है, मिनिमम 50 इयर्स का व्यक्ति होना ही चाहिए। चेयरमैन है तो 70 इयर्स, सदस्य है तो 65 साल। ऐसे सिस्टम जो बनाया गया, somehow judiciary feels और many critics feel कि इसने ट्राइब्यूनल्स को पॉलिटिसाइज कर दिया, हमारा ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं रहेगा, हम दोनों बातें लिख देंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ट्राइब्यूनल्स नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड नॉट in its structure or how appointments are made, but mainly in their functioning. They must enhance the speed with which they are working in India. ये भी 150 शब्द का क्वेश्चन था और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते। अगेन 150 वर्ड क्वेश्चन। Compare, contrast, president's power, pardon, India, USA. ठीक है, half done. Are there any limits to it in both countries? Limits on pardoning power. तीसरा क्वेश्चन, what are preemptive pardons? तो 150 वर्ड में 3 पार्ट है। ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा 60-70 वर्ड दे दो। गिव 40-50 हियर, 40 हियर एंड 30 हियर, है ना, तो 150 वर्ड हो जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। सो नाउ प्रेसिडेंट्स पावर इन इंडिया एंड यूएस। इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, pardoning power is available to the president for only those crimes which are considered federal crimes. But in India, that is not the case. In India, president can pardon completely or partially against any crime, including court-martial sentences, if it is done against any law on which the executive power of the union is extended. Right? Number 1. Number 2, president power in USA to pardon is his own real power. It doesn't act on advice of anyone. Though Department of Justice in USA can give its recommendations, but the president USA is completely free to accept it or reject it. On the other hand, Indian president has to follow, as Maru Ram case, many other cases also, has said beyond doubt, Maru Ram case 1980, that presidential power has, pardoning power of the president has to be used on the advice of Council of Ministers. Council of Ministers, right? So the similar kind of power is there. But since we are parliamentary democracy and they are presidential democracy, there are differences.
एट द सेम टाइम कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट बोल रहा है, तो आप सिमिलरिटी भी लिख सकते हो, और एक सिमिलरिटी यहां पे जरूर लिखनी, दैट बोथ द प्रेसिडेंट्स कैन पार्डन अगेंस्ट दोज क्राइम for which the charges or police investigation or court cases have not been started. अब देखिए, जैसे कि इफ यू से कि मैंने कोई क्राइम किया है लेकिन अभी एफआईआर नहीं हुआ, एफआईआर हो गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, लेकिन लगता है कि मैंने क्राइम किया, तो बिना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुए, एक चीज तो क्लियर है इंडिया में भी और अमेरिका में, दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यूएसए कैन पार्डन एनी पर्सन ऑन एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, इवन बिफोर ट्रायल, बट कैन ही फॉरगिव बिफोर एक्चुअल चार्जेस ऑफ क्राइम हैज बीन मेड अगेंस्ट द पर्सन. दैट इज कॉल्ड preemptive pardon. Preemptive pardon. Now, are there any limitations in both the countries? Limitations India में judicial review is possible. JR, limited JR is there. Because judicial review is basic structure. Judicial review is basic structure. Right. Second limitation on the advice of Council of Ministers. President US का limitation, only federal crimes, no other crimes, only federal crimes, right? Now the question is, preemptive pardon क्या होता है? इंडिया में तो नहीं है. Now in US there is no correct legal position on preemptive pardon, though it is said that US Supreme Court had prohibited long back द प्रिएम्प्टिव पार्डन. अब जो बाइडेन साहब पिछले यूएस प्रेसिडेंट ने जाते जाते अपने पार्डनिंग पावर का प्रयोग करके कई लोगों को पार्डन कर दिया, जिसमें उनके खुद के बेटे के खिलाफ केस चल रहा था. ये तो ठीक है, चलो केस चल रहा है, माफ कर दिए. लेकिन जो बाइडेन आस्क्ड द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस that he is planning to preemptively pardon various other leaders of Democratic Party or his administration, like Kamala Harris, the Vice President, because there were allegations by then the candidate to the president, Mr. Trump, who ultimately won the election, that Kamala Harris has done financial bungling here and there, and when he will become president he will arrest her. तो बाइडेन साहब ने सोचा कि क्या वो माफ कर सकते हैं प्रिएम्प्टिवली? खैर किया नहीं, क्योंकि शायद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बोला होगा कि नहीं कर सकते. तो प्रिएम्प्टिव पार्डन का मतलब यह होता है कि फॉर्मल केस होने के पहले ही पार्डन कर देंगे. तो ये थोड़ा सा लीगली अनस्टेबल हो जा रहा है कि जब कोई चार्ज ही नहीं लगा है अपराध का, तो पार्डन किस बात से करेंगे? पार्डनिंग ऑफ व्हाट? अब प्रिएम्प्टिव पार्डन में हो क्या रहा है कि प्रेसिडेंट खुद ही चार्ज लगा रहा है या प्रिज्यूम कर रहा है और उन्हीं चार्जेस से आपको माफ कर दे रहा है. ये लीगली स्टेबल पोजीशन नहीं बन रहा है. तो इन सारी बातों को आपको इन सब में लिख देना है. हर चीज का डेफिनेट कंक्लूजन होना जरूरी नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड, देयर मे नॉट बी अ डेफिनेट कंक्लूजन फॉर एवरी आंसर. As the UPSC candidate, you have to raise the debate like in this question rather than anything else. ठीक है, तो लिमिट्स भी है, कंपैरिजन भी है, डिफरेंस भी है, इन सारी चीजों पे आया है और ये जो बाइडेन साहब के एक्टिविटी से ये क्वेश्चन बन के सामने निकला है. क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द नेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली. वेरी इजी, इट हैज बिकम यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर.
what you will write? After 2019, it has become UT, and it has become UT legislature like Puducherry, like Delhi. अब दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 239 AA और पुदुचेरी का है 239 A. Then you will write J&K has been included in this category. Obviously, then you will write, since it is UT with legislature, its governor will be called lieutenant governor, and he will have more power than the governors of the other state, and resultantly, second part of the question, powers and functions of assembly of the union of territory of Jammu and Kashmir. Now the first thing you will write is the extent of power of Jammu and Kashmir state legislature will determine the extent of executive power of the Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah. भाई जितनी विधायी शक्ति होती है उन्हीं विषयों पे कार्यपालिका के भी शक्ति होती है. Since it is UT, definitely it will not get list 2 completely. Will not get list 2 completely. क्योंकि लिस्ट 2 इज स्टेट लिस्ट. इफ स्टेट लिस्ट को पूरा दे दें तब तो बाकी फुल फ्लेजेड राज्यों की तरह वो हो जाएगा. बट हियर इन दिस केस, सिंस इट इज यूटी, they don't get certain powers of list 2 plus they don't get list 3. तो list 3 तो पूरा नहीं मिलता. For Jammu and Kashmir, list 3 belongs to Parliament. In list 2 also, they don't have, you can say, public order, police, and laws related to conditions, service conditions, office service conditions, rules for anti-corruption bureau, right? All India services, posting, transfer, promotion, and such related law and order issues, Similarly, the power of Jammu and Kashmir State Legislative Assembly is on list 2 except public order, police, no list 3, and certain expressive powers have been given. More discretionary power has been given to the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. So, this is what is the whole position. Finally, you will write at the end, the Supreme Court in Manohar Lal Sharma, which is Jammu and Kashmir case, has given the written affidavit, written promise to the Supreme Court, has told to this country that the UT's status to Jammu and Kashmir legislature is temporary, and sooner than later, though no time frame has been given, they will declare Jammu and Kashmir as the full state, and the legislature will get all the powers of list 2 and 3 as it is available to any other full-fledged state in India. The ground for all these things is the national security. So, this is going to be a temporary measure for sure. So, this is where we need to understand how to write this question. This is again a very
After so many years, this question has come, and a good answer can be written. Attorney General, traditional question. The Attorney AG, Article 76, plays a crucial role in guiding the legal framework of the union government and governance. How? तो गवर्नमेंट को बता देंगे, गवर्नेंस का भी रोल थोड़ा बहुत बता देंगे. थ्रू लीगल काउंसिल, अपने कानूनी सलाह से. डिस्कस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज 76, राइट्स 76, आर्टिकल 76 प्लस 88, एंड लिमिटेशंस, pleasure of president. No fixed tenure. Contractual nature of job. Contractual nature of job. Now, how to start this question? Since question is largely descriptive, we will write Article 76 of the Indian Constitution. Constitute the post of Attorney General of India. He is the highest law officer of India and the legal counsel of the Union government. He is appointed by the President under his hand and seal. And he must be the person eligible to become the Supreme Court judge. ये तो पहले पैराग्राफ में लिख देना है, सब बता देना है, राइट. अब नाउ you will write all these things. Then second paragraph, the rights, responsibilities and duties of AGI are following 1, 2, 3, 4, 5. For example, number 1 you will write, he will give the legal advice to the central government on every legal matter such as drafting the bills, reviewing the bills, proposing amendments in the acts after they are passed. And here you will write the example, current affairs. Recently, you will write, recently, the central government has sent the Digital Personal Data Protection Act 2023 to Attorney General of India for his opinion on whether the bill clauses, provisions are adversely impacting the provisions of Right to Information Act 2005. Now, ये एग्जाम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि करंट है, अभी पिछले महीने की बात है, और यही गवर्नेंस का मसला भी है कि द स्पेशल रूल ड्राफ्टिंग स्टेज में ही नहीं है, बाद में भी है. सो सिंस legality of the governance is very important in procedural efficiency of the government. अगर AGI सही भूमिका प्ले करेगा, then definitely टाइम बचेगा सरकार का, केस नहीं होगा, पैसा बचेगा, लूप होल्स कम रहेंगे, स्पीड बढ़ेगा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का, लीगल खर्चे बचेंगे. और कहीं सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया किसी नीति पॉलिसी बिल अमेंडमेंट को, इतना सारा एफर्ट वेस्ट हो जाता है. सो देयरफॉर गुड काउंसिलिंग बाय मिस्टर अटॉर्नी जनरल is very vital in the governance of the country. Then the third point, rights for and any other job that may be given to him by the President of India. Next, in his job, in his duties, the AGI shall have the right to audience in any court of India. Any court of India, right? And also, you will write Article 88 that gives him additional right to take part in any proceedings of the Parliament. Any proceedings of the Parliament and its committees. He can speak, he
can discuss, he can answer, but he cannot vote. Now the problem here is the limitations, and the limitations of Mr. AGI is very clear, as I have written already. He works on pleasure of president, no fixed tenure, so he can be removed anytime, and generally he is expected to resign when government changes, right? And the job is contractual, so he can continue with his private practice. He is a lawyer anyway, though he cannot take criminal cases without the permission of the central government. But all these things makes him a kind of independent counsel की बजाय, सलाहकार की बजाय, he becomes a justificator of the central government policies. यहाँ पे थोड़ा एक इंडिपेंडेंट अगर पावर दें, whether he can act independently in public view by changing some of his office conditions and functions, then that will be perhaps a better idea. तो इन सारी बातों को आप इसमें लिखेंगे, और ये आंसर काफी अच्छा है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, होपफुली सबने लिखा भी होगा. नाउ सोशल इश्यू से ये क्वेश्चन आ गया. क्वेश्चन नंबर 5, 6. विमेन्स सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट मीन्स aids in empowerment, that is women empowerment, and gender equity, male female equality kind of thing. Explain करना. Explanation means question is largely descriptive in nature, so you can write very easily. The most important word is how do you define women's social capital. Social capital can be defined as the quality of any person related to his ability to speak, understand, comprehend, analyze the problems in the society. Now, on the real ground, social capital is good when your education is good. Social capital is good when your communication is good. Social capital is good when your personal relation, PR, interpersonal relationship is good. Social capital is also health. A person who is not healthy with chronic disease or malnutrition or something, social burden है, capital कहाँ? ठीक है. तो education, health, PR, and the most important, not to forget, income. So if you have all these things, then you may be said to have a good enough सोशल कैपिटल. तो अब सवाल ये है कि अगर महिलाओं का सोशल कैपिटल बढ़ता है तो इनसे उनका एम्पावरमेंट भी बढ़ता है और महिला पुरुष में बराबरी भी आती है. आंसर इज डेफिनेटली यस. अब इसके ऊपर बहुत सारे इंडिया में रिसर्च, फील्ड वर्क हो चुका है. यूएन ने किया है, इंडिया के एनजीओज और रिसर्चर्स ने किया है. सो दैट हैज बीन देयर अ क्रिस्टल क्लियर कि इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर विमेन एम्पावरमेंट एज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट in writing the books or making the seminars, what we need to do is to enhance the social capital of the women. अब इसको यहां से देख सकते हैं कि आप आइडेंटिफाई करो कि women का सोशल कैपिटल कम कहाँ है, शहरों में कि गांव में. एज वाइज आइडेंटिफाई करो. 18 साल से कम की लड़कियां 18 से 50 तक, 50 के ऊपर तक. फैमिली वाइज आइडेंटिफाई करो. विडोड विमेन, सिंगल विमेन, फैमिली विमेन विथ चिल्ड्रन,
and married women without children. अब देखिए सोशल कैपिटल की बात है, कुल मिला के समाज में आपकी औकात कितनी है इसको सोशल कैपिटल कहते हैं। एक लाइन में दुनिया आपकी बात कितनी सुनती है, कितने लोगों से आपका कनेक्शन है, कितने लोग आपकी बात समझने को तैयार हैं, आप समझाने की क्षमता रखते हैं, ये सोशल स्टेटस की बात है। So now the question is what we have come. Now the result of the experiments, social research in India is when social capital increases, empowerment index increases, right? But there are certain factors and variables in relation between social capital and women empowerment. And what are those variables? Married women have more tendency to have a social capital than anyone else. Women who are having family, stable family, not divorced, not without children, they will have more chances to add on their social capital. Women with increasing age, when they are 30, 40, 50, 60. So with increasing age, women's social capital increases, even with the same income and same educational level, right? At the same time, the most important part here, which you have to put down on the paper, that those women who are engaged in community level of interactions through government schemes of self-help groups like Mahila Samakhya, like Women Self-Help Group, like Startup Village Entrepreneurship Program for Women, और दीन दयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब इन सब का नाम भी देना चाहिए क्योंकि अब बात गवर्नेंस सोशल इश्यू की आ रही है। तो जिन महिलाओं का इन योजनाओं में अच्छा परफॉर्मेंस है, हर जगह के इंटीरियर इलाकों में महाराष्ट्र से लेके बिहार तक ये देखा गया है कि देयर सोशल कैपिटल इज मोर, their decision making power is more in the family, in the society, and hence they have a better chance of this. So income, health, interpersonal connections, communication skills, language, and education level, family status, all these things are ingredients of the social capital, and there is a direct correlation between women empowerment, gender equity, and social capital of women. तो इन सारी चीजों को करके आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 7, ई गवर्नेंस परियोजनाओं में, आई विल रीड इन इंग्लिश, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव बिल्ट इन बायस। जितनी भी ई गवर्नेंस की योजना बनती है, ई गवर्नेंस मतलब सरकार और बिजनेस, सरकार जैसे गवर्नमेंट, तो G2B दैट इज गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसको बोलेंगे G2B, या G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C। अब G2B क्या है? लोन लेना है तो ऑनलाइन आ जाइए, कॉम्प्लायंस देना है तो ऑनलाइन आ जाइए, ये G2B हो गया। अगर एक मंत्रालय को, एक विभाग को, एक व्यक्ति को दूसरे विभाग, मंत्रालय, सरकारी चीज से कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, देनी है, बात करनी है तो G2G। एंड गवर्नमेंट टू सिटीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, है ना, बहुत कुछ होता है। सरकारी सुविधाएं तो ऑनलाइन, आप यूपीएससी का फॉर्म भी भरते हैं तो G2C, या आप ऑनलाइन जाइए फॉर्म भरिए, दिस इज व्हाट इट इज डन। तो G2C यहाँ पे है। नाउ ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड द ई गवर्नेंस, मैंने एग्जांपल दिया। नाउ सी द क्वेश्चन,
क्वेश्चन इज ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव बिल्ट इन बायस। अब ई गवर्नेंस है, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी पे इसकी निर्भरता, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन खोजने की इसकी सोच तो ज्यादा हो गई। और बैकएंड इंटीग्रेशन क्या है? बैकएंड इंटीग्रेशन मतलब कि ऐप अच्छा बन जाए, डेटा सारा भर जाए, आधार सर्वर से लिंक हो जाए, पता चल जाए कि जनधन अकाउंट कितनों का चल रहा है, अगर कोई ओटीपी मांग रहा हो तो तुरंत मिल जाए, ये बैकएंड है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैकएंड इंटीग्रेशन रादर देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन। अब ये कमेंट है जो कि सही, इसमें किसी की बुराई नहीं की जा रही है, तो आप इस स्टेटमेंट को लार्जली समर्थन दे सकते, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है, राइट। अब यूजर सेंट्रिक डिजाइन क्या होता है? यूजर सेंट्रिक डिजाइन हियर इन ई गवर्नेंस मीन्स दैट वी मस्ट make our e-governance projects, schemes, policies, app, interaction, whatever, according to the profile of the user. Profile of the user क्या होता है? Age, literacy, digital literacy, availability of the ICT infrastructure. ठीक है, you have to count in the error, failure rate of the technology, failure rate of the technology. For example, if I say that to avail a government scheme benefits, you must give your ABC data online with geotagging, with live feed, with location feature on, then definitely for many women or men in India, this could be a tough task, you know. Many people may not do. Many people don't get the benefits of these schemes simply because the design of this scheme may not be user friendly, and the failure rate of any technology will always be few percent. No citizen surface interface with the tech or app can be 100% foolproof. For example, PM Matri Vandana Yojana, one nation one ration card scheme, right? Sometimes you can say, so the here thing is कि ऐप सुधारना है और क्विक ओटीपी भेज देना है, सारी चीजें लिख देना है, वो तो ठीक है। अब यूजर फ्रेंडली, यूजर सेंट्रिक डिजाइन करने की जरूरत है। We can take the international examples like many countries in the world developed, some developing. For example, in Singapore or many other countries, Taiwan, ऐप सरकार बनाती है सुविधाएं देने के लिए, तो वो ऐप सिटीजन के डेटा पे काम करता है। One app can provide all the information and services to the people. Different apps नहीं होते। अब यहाँ पे एक ऐप तो ऐसा है नहीं, तो अगर आपको लाइसेंस चाहिए ड्राइविंग, अलग जाइए, गन का लाइसेंस चाहिए, अलग जाइए, वोटर आईडी यानी कि वोट का लाइसेंस चाहिए तो अलग जाइए, हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए तो अलग जाइए। नाउ द पॉइंट हियर इज, बिजली बिल अलग, ये अलग, यूपीएससी का फॉर्म अलग। Why don't we create something more a useful way to provide services to the people? तो इस आधार पे, जैसे कि एक ऐप होता है जिसमें सारे सिटीजन ने डेटा भर दिया और वो ऐप खुद ही बता दे कि नहीं अब आप मातृवंदना योजना के लिए एलिजिबल हैं, तो आपके अकाउंट में हम पैसा पहुंचाते। अब ये हुआ यूजर सेंट्रिक ना, आप इसके लिए एलिजिबल हैं,
अभी क्या हो रहा है कि आप खुद पता करो एलिजिबल हो कि नहीं, और फिर जाके ऐप खोलो, डाउनलोड करो, किसी से भरवाओ या किसी से भरवाओ। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, होगा धीरे धीरे, बट द पॉइंट इज कि क्वेश्चन को वैसे लिखना है where you can bring out the necessary points कि दिक्कत कहाँ है and how we can improve। मैंने कई सारे स्कीम्स के एग्जांपल्स भी दिए, और बिल्ट इन टेक्नोलॉजी बायस क्या है और कैसे ये बैक एंड इंटीग्रेशन और यूजर फ्रेंडली में थोड़ा सा गैप क्रिएट करता है। दिस इज व्हाट वी नीड टू मेक इट, दिस इज व्हाट वी नीड टू मेक इट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is again very interesting from social issues, governance, civil society organizations. What are civil society? Let's think of NGOs, ठीक है, and pressure groups. Are often perceived as anti-state rather than non-state actors. Now in the first paragraph you will have to write that civil society organizations are neither people nor the state. They are between private and the public. Private is individual, public is government. So they work as the interface between private and public. Hence, by default, civil society organizations are considered a non-state actor. Though they may be heavily dependent on government funding, government support, but they are not part of government. Hence, they can perhaps supplement the government, criticize the government, analyze the government policies, oppose the government. They can do all of the things. So civil society organizations in democracy, they are part of article 19(1)(c). ये लिखना है, एग्जाम में लिखना 19(1)(c), फंडामेंटल राइट। And civil society organizations have inbuilt fundamental right to protest or launch a movement, of course peacefully, without violence or affecting the people. In Delhi, for example, civil society organizations have right to protest, but on the place and location and manner decided by the government. Now, why then civil society organizations are treated more than often as non-state, less, and anti-state more? Definitely because there may be truth in this thing and there may be narrative into this thing. दोनों बातें लिख देना है। Certain civil society organizations have been unable to show their funding pattern and the expenditure pattern when the Government Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) was amended, and FCRA licenses were issued only after they filed their data with more audit and more facts. Many of the pressure groups in India failed. Amnesty International, many other things, even Kailash Satyarthi's organization failed. So many such NGOs were found by government agencies to be funded by vested government agencies, foreign government agencies, trying to prevent the big infrastructure projects in India, specifically Kudankulam nuclear power project. Now, sometimes these NGOs work for vulnerable, deprived classes, minority, marginalized classes, and so they come in crosshairs with the government policies. So
Now, do you agree? See the question. Do you agree? No, we don't agree. Means there is no need to see the civil society groups as anti-national. They have been contributing a lot in various areas of India, like environmental jurisprudence, gender issues, tribal rights. But at the same time, be it Indian NGOs or international NGOs or foreign funded Indian NGOs, they must comply with the law of the land. That's what Supreme Court said. That if the government demands more audited data, how you spend your money, that doesn't mean that your work is prevented. The government has the regulatory capacity to see how the NGOs function. That is power of the government. And this is not unreasonable. Hence, there has to be a balance how much the NGOs in the name of civil society groups shall have autonomy of their functioning, and also how much they should be accountable to the people and the law of the land in transparency and accountability. इन दोनों को बैलेंस करके इस उत्तर को लिख देना है. बहुत थियरी देने की जरूरत नहीं है. एनजीओस की थियरी बहुत है, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. एक आध दे देने से कोई घाटा भी नहीं है. मैंने चिपको आंदोलन जैसे एक आध आपको सिविल सोसाइटी ग्रुप बताया ही. उनके हिसाब से इसको लिख देना है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप 2008 से चल रहा है. पैन ई अफ्रीका प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था. फिर हमने पैन ई एजुकेशन शुरू किया. फिर हमने पैन ई हेल्थ किया अफ्रीका के लिए, पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट के लिए. ठीक है. लाइब्रेरी से जोड़ा. ये सारा काम हम करते हैं आईसीईटी में. ठीक है. सो भारत का जो फॉरेन एड और फंडिंग प्रोग्राम है, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आईटीईसी, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. सो क्वेश्चन इज, इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, co-development and long-term institutional partnership. Elaborate. Now you can elaborate this only with examples. Only with examples of few projects and few countries. तो प्रोजेक्ट्स तो मैंने पैन ई अफ्रीका, इसमें क्या शुरू किया था हमने? पूरे अफ्रीका को हाई स्पीड केबल से जोड़ना, इंटरनेट केबल से जोड़ना, ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना, सो दैट दे कैन हैव गुड स्पीड इंटरनेट थ्रू आउट अफ्रीका. वी कंप्लीटेड दैट. देन वी लिंक्ड देम विद आवर एजुकेशनल assets and libraries so that tele-education can be a reality for the African continent, almost all the countries. Then e-health, telemedicine. ठीक है, ये प्रोजेक्ट किया. इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन प्रोवाइडिंग ह्यूमन रिसोर्स हेल्प, technological capacity help to hundreds of projects in Africa. For example, in Ethiopia, Uganda, many other countries like IIT campus was opened when PM Modi visited last. Rural drinking water projects. Then training capacity like डीजल इंजन अगर रेलवे का है तो ड्राइवर को ट्रेन करना पड़ेगा. ट्रैफिक सिग्नल लग रहा है तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा. इलेक्शन कमीशन बन रहा है तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा.
So India's different private and public institutions have become partners with the African counterparts in creating what is called the Kampala principle of what PM Modi announced long back for India Africa partnership, that India sees Africa not as the source of raw material but as the friend, co development partner, institutional partner, and human resource partner. So, therefore, India Africa relation in this respect is totally different from uh, Africa China relation. In this, you can also quote G20 Summit 2023, where India, in its global South vision, allowed and worked endlessly to provide African continent, African Union, a member of G20, a member of G20. So this a global साउथ का जो भी कॉन्सेप्ट है, इंडिया अफ्रीका के पार्टनरशिप, और इंडिया अफ्रीका की पार्टनरशिप में डिजिटल पार्टनरशिप एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहा है. एनीवे दीज डेज डिजिटल इज इनएविटेबल. whatever cooperation you do, even if you go for agricultural agreement with any country, digital cooperation has to be part of it, has to be part of it. ठीक है, तो कितना आप जानते हैं कितना नहीं, बट ये मैं बेसिक मिनिमम बता रहा हूं जहां पे इसके हिसाब से लिखना, क्योंकि इलाबोरेट करने को बोला है और फैक्ट दो चार नहीं लिखेंगे तो मामला जमेगा नहीं. कुछ ज्यादा तो नहीं लिखना है, जनरल स्टडीज है, अचानक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इंडिया अफ्रीका रिलेशन की पढ़ाई अगर आपने की होगी तो ये दो चार चीजें डेफिनेटली पढ़ाया ही जाता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं. ठीक है, नेक्स्ट IR क्वेश्चन वी हैव. विद वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वेनिंग मतलब खत्म हो रहा है, क्षीण हो रहा है, पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड इज बिकमिंग अ साइट ऑफ सोवरन नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, वैश्वीकरण खत्म हो रहा है तो राष्ट्रवाद आ रहा है. अब ये स्टेटमेंट दे दिया है और उसके बाद बोल रहा है एल्यूसिडेट. सो व्हाट इज एल्यूसिडेशन इनटू इट? आप इस स्टेटमेंट का मतलब बता दीजिए एग्जाम्पल सहित. आपसे ओपिनियन नहीं पूछ रहा खास तौर से कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इफ द क्वेश्चन वाज अबाउट क्रिटिकल एंड क्रिटिकली एनालाइज, तब तो हम कुछ कहते कि सर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. But since they have given a statement in double inverted comma, see double inverted comma, and then they are saying elucidate, तो आप इस स्टेटमेंट का जनरल मतलब बता दीजिए, कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए स्टेटमेंट के सपोर्ट में या अगेंस्ट में, लेकिन आप उस पे अपना पर्सनल ओपिनियन मत दीजिए. ना, वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन is also called deglobalization, and post Cold War is after 1990. So the first paragraph will be, today it is believed strongly that globalization has passed its golden era. Many IR experts believe that golden era of globalization was the period before Second World War. After Second World War, globalization was under control and leadership of United States of America through global financial institutions, IMF, World Bank, and then WTO. However, after 1990s and specifically 2008 subprime crisis, the American supremacy and relevance of global financial institutions, including WTO, has been under serious question. The examples could be
incapability of United States of America in providing global leadership. WTO decline, IMF World Bank decline, and incapability of US in preventing financial crisis of its own and others, and incapability or unwillingness of the US presidents, specifically Mr. Trump, in preventing the global conflicts and other global challenging issues such as environment and human rights. Going for self-imposed isolation by United States of America through unwillingness or incapability is seen as one of the primary examples of growth in the nationalism in the world. Economically, we see it through protectionism. Geopolitically, we see it through the war and expansionism, Ukraine, Gaza, maybe some other China, Taiwan, like 9-dash policy of China, right? Number of conflicts increasing. कंबोडिया थाईलैंड लड़ लिए, फिर अभी इंडिया पाकिस्तान लड़ लिए, फिर उधर लड़ लिए. Tension is increasing. Tariff war of Mr. Trump is the final nail, as people say, in the spirit of globalization. और जब ग्लोबलाइजेशन कम होगा, इंटरकनेक्टिविटी को डाउट से देखा जाएगा, तो डेफिनेटली एवरी नेशन विल बी लेफ्ट अलोन. और आईआर के संदर्भों में वी विल कॉल इट द लैक ऑफ अमेरिकन अम्ब्रेला इन प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू द ट्रेडिशनल फ्रेंड्स. तो अमेरिका अब प्रोवाइड या तो कर नहीं रहा है, या करना चाहता नहीं है, या फिर उस लायक नहीं है. इस चक्कर में हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली जब ग्लोबलाइजेशन डी ग्लोबलाइज हो रहा है तो नेशनलिज्म बढ़ रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे लाइन को आप एक्सप्लेन कर देंगे, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. I'll read the question. Question number 11. Polity 250 words. बड़ा क्वेश्चन है ना, 250 वर्ड्स के. स्टेटमेंट इज गिवन. स्टेटमेंट का क्वेश्चन से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, बट उसको पढ़ के उसी की लाइट में लिखना है. Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike. In view of the above observation of Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है. अब सवाल सुप्रीम कोर्ट पे ही है. देखिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो गया, एंड इट्स एप्लीकेशन टू इंश्योर बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी. जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉलेजियम सिस्टम हो गया, ठीक है, उस पर लिखना है. और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मतलब जजेस के अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो कि कॉलेजियम में नहीं है. तो क्वेश्चन ट्रिकी है. कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉलो करें, और क्वेश्चन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही नहीं कर रहा है. ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बैलेंस करके उत्तर को लिखना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. नो सिंगल डेफिनेशन कैन बी गिवन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. But constitutional morality is the logical outcome of constitutionalism, which says that every constitutional authority, institution, person and the post must follow the constitutional expectations in their own powers, responsibilities, duties and functioning. Constitutional expectation word is more than what is written in the Constitution. So therefore, constitutional morality is a constitutional expectation from a person mentioned in the Constitution or the post mentioned in the Constitution to behave in the right spirit of the Constitution, not looking for the loopholes.
In 2023, Lieutenant Governor versus Delhi, Lieutenant Governor Delhi versus Delhi government case, the Supreme Court had used this line that constitutional morality is like a fulcrum of the constitutional jurisprudence, constitutional law, और सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हिसाब से अपनी शक्तियों और पावर को देखना चाहिए। और सबसे बड़ा एग्जांपल है गवर्नर की पोस्ट। तो आप बता दिए, इसका जनरल डेफिनेशन मैंने बताया, वही लिख देना। नाउ इसको कैसे अब हम लोग इसमें करें? नाउ यू विल राइट दैट जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन as declared by Supreme Court in 2015 NJSC case. Judicial independence means that judiciary should not be influenced, impacted, or meddled by the executive or the parliament, except the manner provided by the constitution. The most important part of judicial independence, as court has always protected, is the appointment of the judges. As we know, the collegium system was evolved in 1993 by the Supreme Court. But we have seen on multiple occasions that collegium system lacks the sufficient procedures, sufficient openness, sufficient public trust about who and how judges are recommended, and it doesn't have any kind of disciplinary powers against the errant judges. Errant judges. So is not it that the judicial independence, which is reflected in the collegium system, should also be made in such a manner that it ensures the constitutional accountability of the Supreme Court towards, if not people directly, but the people must have the trust in the transparency of the process. So the cases of corruption or misconduct from the higher judiciary judges is becoming more and more frequent. The recent motion of removal against the Delhi High Court Judge Mr. Yashwant Verma is the case in the point. So the same collegium has appointed it. And the collegium appointments have come on more than one occasions in crosshairs with the government, with the executive. And so the point here is that the time has come where judicial independence has to be met with the accountability of the judiciary in India. Though judiciary is not accountable to the executive or the legislature or to the people directly, but they have to the people at least. अगर लोगों का भरोसा न्यायपालिका से कम होने लगेगा तो ये न्यायपालिका के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. Now as a solution or way forward, you can write here that memorandum of procedure, which was earlier there before NJSC agreement and now broken, is a perceived agreement between the CJI, judiciary, and the government for appointment of judges. But no MOP has been created since 2015, and there has been not only conflict between the executive and judiciary, but also the conflict between the two important values of the constitutional morality, that is judicial independence and the judicial accountability. ठीक है, तो इन सारे चीजों को लेके आप लिख सकते हैं कि कैसे इसको किया जाए. आरटीआई केस को देखो, सुभाष चंद्र अग्रवाल केस ने बोला कि जुडिशियरी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस भी आरटीआई में आता है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कॉलेजियम को छोड़ के, तो कॉलेजियम वहां भी बच गया. ठीक है, के वीरास्वामी केस आता है 1991 का कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर अगर किसी जज के खिलाफ केस होगा
तो सीजेआई के परमिशन से होगा। अब सीजेआई परमिशन नहीं देंगे तो प्रेसिडेंट का परमिशन से काम नहीं चलेगा। सो देयर इज सम काइंड ऑफ ग्लास सीलिंग as it is perceived, and it is the morality of the judiciary to break that glass ceiling and let the people see how judiciary is functioning. तो इस कन्विक्शन के साथ आप इस उत्तर को लिखेंगे, nothing against judiciary but nobody is above constitution and constitutional morality. ठीक है, अब देखते हैं 12वें क्वेश्चन पे हम आ गए। 250 वर्ड्स। Indian Constitution has conferred amending power on the ordinary legislative institution. मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनता है। अमेरिका में जब भी अमेंडमेंट होगा तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। हमारे यहाँ जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर है यानी कि पार्लियामेंट जो रोज रोज का लॉ बनाता है वही अमेंडमेंट करता है। तो इस बात को पहले समझा दीजिए। फ्यू प्रोसीजरल हर्डल। प्रोसीजरल हर्डल क्या है? प्रोसीजरल हर्डल ये है कि अमेंडमेंट बिल राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास होना चाहिए। दूसरा हर्डल 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। तीसरा हर्डल अगर कोई फेडरल प्रोविजन है तो हाफ ऑफ द स्टेट्स द्वारा पास होना चाहिए। ये तीसरा प्रोसीजरल हर्डल है और ये तीनों 368 में दिया गया है, ये लिख देना है शुरू में। तो तीनों प्रोसीजरल हर्डल बता दी। हो गया। आगे, इन व्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामिन द प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव लिमिटेशंस ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये मेन क्वेश्चन है, कहां से शुरू होगा? शंकरी प्रसाद केस से शुरू होगा। तो आप लिखेंगे कि प्रॉब्लम दो जगह है। पहला कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। दूसरा, क्या पार्लियामेंट का पावर आर्टिकल 368 वाला पावर ऑफ अमेंड है कि प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। इन सारी बातों को आप ढंग से दिखा सकते हैं अगर बहुत कम लाइनों में, जो कि पॉसिबल तभी है जब क्लैरिटी आपके पास बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्लैरिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तभी ये काम चलेगा। और क्लैरिटी क्या है? In Shankari Prasad, Supreme Court said very clear that Parliament has the unlimited power to amend the Constitution, including any part of the Parliament, fundamental rights. Sajjan Singh case was repeated, but in Golaknath case 1967, the Parliament took just opposite view and said that Article 368 is only procedure but not the power. And hence they cannot touch the fundamental rights. So their amending power was limited by doctrine of prospective overruling. And then came finally 25th Amendment and many other amendments by Indira Gandhi, which was challenged in Keswananda Bharati case. And the Keswa case said that basic structure of the constitution shall be the substantive and implied limitation on the power of parliament to amend this constitution. To amend this constitution. तो प्रोसीजरल तो हमने पहले ही बता दिया था, वो लिख देना है। और सब्सटैंटिव में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है। नाउ 42nd अमेंडमेंट केम दैट अमेंडेड आर्टिकल 13 and 368 both. And the aim of 42nd amendment was to nullify the impact of the Keswa judgment. The case was again raised in the form of Minerva Mills. And Supreme Court in Minerva Mills case said that doctrine of basic structure is a precedent, a basic structure. And therefore, Parliament of India cannot claim the power of Constituent Assembly to rewrite the Constitution. And hence, they can amend any part of the Constitution, including fundamental rights, but except doctrine of basic structure means basic structure. And in I.R. Coelho case 2006, Supreme Court also stopped immunity to Article 31B 9th schedule, and court said that all the laws included in the 9th schedule of the Constitution shall be subject to judicial review on the basis of violation of the doctrine of basic structure if they were included
आफ्टर द केसवा जजमेंट 24 अप्रैल 1973। तो ये पूरे इवोल्यूशन को अगर आप बढ़िया से लिख सकते हैं, 250 वर्ड भी बहुत इजीली हो जाएगा, और अगर जानकारी है तो 6-7 मिनट का गेम है, फटाफट लिख के आप आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, discuss the evolution of collegium. Very traditional question. After so many years, UPSC has given so many traditional questions. Critically examine the advantages and the disadvantages of the system of appointment of judges in India and that of the USA. ठीक है, USA, तो USA वाला पहले पैराग्राफ में लिख डालो। In USA, judges are appointed by the president, subject to confirmation by Senate. If the Senate does not confirm a judge, the president will appoint someone else subject to confirmation again. Very rarely, confirmation by Senate is rejected. Judges of Supreme Court of US, unlike India, are lifetime judges. Hence, once a judge, always a judge, and it is appointment on the political basis, democratic versus republican affiliation, and therefore American Supreme Court judges are called political judges. On the other hand, in India, judges have retirement age of 65 years for the Supreme Court. Right? They are not lifetime judges and they are not appointed by the president or the government, but through a collegium system. The purpose is to ensure judicial independence. US judiciary therefore is not called independent, though they are, but not like India. Now, evolution of the collegium system. अब SP गुप्ता केस 1982 पहला केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 124 में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो जज बनाता है 217 में हाई कोर्ट वाले, तो सीजेआई और अदर जजेस से कंसल्ट करेगा। तो कंसल्टेशन कंपलसरी है, मानना कंपलसरी नहीं। फिर दूसरा केस आया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड 1993। इसी से मॉडर्न कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीजेआई +2 सीनियर मोस्ट जज, 3 लोगों का ग्रुप मिलके ये तय करेगा और प्रेसिडेंट उसी ग्रुप के कहने से जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे। अब बाकी और सारे सवालों को उठा के 1998 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस हुआ कॉलेजियम के ऊपर, और आज का जो कॉलेजियम है वो फॉर्मली स्टैब्लिश हो गया 1998 के जजमेंट में, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस में। एंड इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट सेड वेरी क्लियरली दैट कॉलेजियम ऑफ 1+4 जजेस विल बी देयर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, एंड 5 लोग मिलके मेजॉरिटी से तय करेंगे कौन जज बनेगा। लेकिन इन 5 लोगों में से सीजेआई अगर मना कर देता है तो वो नाम आगे नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अगर बाकी 2 जज मना करते हैं तो सीजेआई के कहने से भी नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, सो प्लुरैलिटी ऑफ द ओपिनियन ऑफ कॉलेजियम का सिद्धांत आ गया और इस इवोल्यूशन से चलता रहा। फाइनली 99th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, एनजेएसी एक्ट बना, आर्टिकल 124 बी और सी ऐड ABC ऐड किया गया और कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करके एक अलग सिलेक्शन कमेटी बनाई गई। उस कॉलेजियम में सीजेआई +2 सीनियर मोस्ट जजेस के अलावा कानून मंत्री +2 विशेषज्ञ आ गए। ठीक है, अब इस पूरे एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी केस में शून्य घोषित कर दिया, वाइड एब इनिशियो, और सुप्रीम कोर्ट सेड वेरी क्लियरली दैट सी मैन, आई मीन दिस इज अगेंस्ट द जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये पूरा इवोल्यूशन है और यूएसए के कंपैरिजन हमने पहले ही बता दिया। हमारी प्रणाली की दिक्कतें हमने पिछले क्वेश्चन में डील किया था जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में, वहां से कुछ पॉइंट उठा के यहां लिख देना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, इवॉल्विंग इन कंटेक्स्ट ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन पे मत पहुंच जाना, प्लान डेवलपमेंट मैंने प्लानिंग कमीशन नहीं है, गया जमाना प्लानिंग कमीशन, आज की बात हो रही है। हाउ फार हैव द रिसेंट रिफॉर्म्स impacted the fiscal federalism in India? ठीक है, सो इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन में पैटर्न दो तीन है। पहला कि सेंटर का पैसा स्टेट्स को कैसे जाता है, ये तो हो गया पैटर्न। तो पहले पैटर्न लिख दो। पैटर्न क्या है? पैटर्न है फाइनेंस कमीशन 280 जो कि मेन है। उसके अलावा है ग्रैंड सीनेट 275 जो कि फाइनेंस कमीशन। उसके अलावा कुछ एडिशनल स्पेशल मनी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जाता है वो आर्टिकल 290, 91, 92 में भेज दो। उसके अलावा 293 आर्टिकल लिखना पड़ेगा जिसके तहत अगर कोई स्टेट लोन लेता है तो वो लोन तभी ले सकता है जब पहले का अपना केंद्र सरकार का लोन लौटा दिया, अदरवाइज बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे स्टेट गवर्नमेंट लोन ले नहीं सकता है। अब ये तो हो गया पैटर्न। अब इसमें क्या इवॉल्विंग है ये 4 लाइन लिखेंगे और फिर नया क्या इवॉल्विंग है उसके 4-5 लाइनें लिखेंगे। अब रिसेंट इवॉल्विंग ट्रेंड के 5 पॉइंट। नंबर 1 जीएसटी। जीएसटी पहली बार ऐसा टैक्स है जो 50-50 बांटता है सेंटर स्टेट के। सुन के अच्छा लग रहा है लेकिन ये फेडरल क्वेश्चन है 2 कारणों से। नंबर 1 कि नॉट एवरी स्टेट इन इंडिया हैव जीएसटी प्रोडक्शन। जो देश, जो राज्य हमारे पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वहां जीएसटी क्रिएट नहीं होता, तो जीएसटी से उनको फायदा नहीं। दूसरा, जीएसटी से कॉम्पनसेशन ऑफ टैक्सेस का जो प्रॉमिस सरकार ने 2018 से किया है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाए। तीसरा, अभी जो 3 दिन पहले जीएसटी रिफॉर्म की बात की गई है कि स्लैब कम करेंगे, वो भी आपको एग्जाम में लिखना है क्योंकि आज पेपर हुआ है और ये 4 दिन पहले की बात है। तो अगर आप स्लैब को कम करेंगे तो इंपावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो जीएसटी पे बनाई गई है 6 राज्यों को मिला के, 3 सत्ता पक्ष के 3 विपक्ष के, उन्होंने बोला है कॉम्पनसेशन वाला इश्यू फिर से आ रहा है, तो ये फेडरल इश्यू हो गया। अगला है सेस एंड सरचार्ज। सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रॉस टैक्स कलेक्शन में सेस और सरचार्ज का परसेंटेज बढ़ता चला गया। एंड सेस एंड सरचार्ज वित्त आयोग के पैसे बांटने वाले पैसे के पूल में नहीं काउंट होता है। केरला का लोन आर्टिकल 293 इवॉल्विंग सेंटर स्टेट फेडरल रिलेशन में आता है। उसके अलावा फेडरल रिलेशन में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की स्ट्रीमलाइनिंग और फंडिंग पैटर्न में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑन व्हिच दे पे द मनी। फॉर एग्जांपल, there has been skirmishes between central government and Tamil Nadu for educational fund because they are not ready to implement new education policy, with the West Bengal government because they are not complying with the Aadhaar card standards in the Narega job cards. ये सब इवॉल्विंग है। आप इन सारी बातों को लेके एक बहुत ही बढ़िया उत्तर फिस्कल फेडरलिज्म का लिख सकते हैं, बिकॉज इन मॉडर्न डेज फेडरलिज्म इज लार्जली फिस्कल फेडरलिज्म। पैसा लगातार इंपॉर्टेंट हो जा रहा है और अभी जब से ट्रंप की टैरिफ लगी है 25% प्लस 25% पेनाल्टी, उस पे तमिलनाडु सरकार और बाकी गुजरात महाराष्ट्र की सरकार ने बोला है कि केंद्र सरकार को हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था में होने वाले नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। फिस्कल फेडरलिज्म का इवॉल्विंग पैटर्न देखिए, ठीक है। अब इसमें से कितना आप लिखे हैं, कितना सोच पाए हैं, वो एक अलग बात है, बट दिस विल बी द आइडियल आंसर फॉर दिस एंड यू कैन राइट इट। नेक्स्ट, पर्यावरण दबाव समूह क्या है, उनके रोल बताइए। तो दबाव समूह का रोल जनरली जो होता है एडवोकेसी, स्पेशलाइजेशन, रिसर्च, ये सारी चीजें, एक्सपर्टीज, इन सारी चीजों को लिखना है।
एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप के दो चार नाम लिख देते हैं। इंडियन सेंटर फॉर एनवायरो लीगल एक्शन, चिपको, एनबीए, ऐसे बहुत सारे, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सुनीता नारायण का। तो दो चार के नाम लिख दिए, एक दो बात लिख दिया, एक दो सुप्रीम कोर्ट का केस लिख दिया। जैसे इंडियन सेंटर फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल डेवलप किया। उसी तरीके से भोपाल गैस कांड में एक नया पीआईएल जब आया तो नया दिया। एमसी मेहता केस प्रेशर ग्रुप अपने आप में है, वो एक नया केस दिया। तो इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप का मतलब ही है कि प्रेशर ग्रुप जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के एरिया में काम करता है, क्लीन एयर एंड ऑल दोज थिंग्स, सेविंग फॉरेस्ट, डिस्कस देयर रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज एंड एडवोकेटिंग फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो रोल चिपको आंदोलन का दिखा दो, कैसे अवेयरनेस बढ़ाया। सुनीता नारायण के एनजीओ की एक बात कोई लिख दो कि कैसे हुआ। एक सुप्रीम कोर्ट का केस मैं नहीं बताया। एमसी मेहता तो सब जानते हैं, डीप पॉकेट थियरी एंड बिगिनिंग ऑफ एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया, ठीक है। भोपाल गैस कांड से कैसे भारत में अवेयरनेस बढ़ा और इन्वायरमेंटल एनजीओस की बाढ़ आ गई। गंगा का पोल्यूशन रोकने के लिए इन्वायरमेंटल केसेस है, ताजमहल को बचाने के लिए, पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग करने के लिए मुरली देवड़ा केस। सो इतने सारी चीजों को लेके अगर इसमें से आधा भी आप लिखते हैं एग्जाम्पल और अवेयरनेस और कैसे ये काम करते हैं, then you can get sufficient credit for your answer. Question number 16. Inequality in the ownership pattern of resources is one of the major causes of poverty. पहला स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं है, बट इसी स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन क्या है? Discuss in the context of paradox of poverty. अब paradox of poverty का मतलब क्या है आपने लगाया है, यहीं पे आपका असली खेल है। Paradox of poverty basically means कि एक तरफ हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, चौथे तीसरे वर्ल्ड इकोनॉमी हो गए, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी, गरीबों की संख्या भी कम हो रही है। लेकिन दो पैराडॉक्स। पहला पैराडॉक्स है इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, और दूसरा पैराडॉक्स है कि बहुत सारे गरीब जो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं वो इनकम पुअर है, रिसोर्स पुअर भले ना। अब इनकम पॉवर्टी तो है, रिसोर्स पॉवर्टी नहीं है। कैसे? सरकार फ्री में अनाज दे रही है, फ्री में सिलेंडर दे रही है, तो इनकम पॉवर्टी नहीं हो रहा। इनकम पॉवर्टी है लेकिन आप गरीबी रेखा में नहीं आते। अब इस पैराडॉक्स को एक कारण, बहुत सारे कारण है पैराडॉक्स के, पैराडॉक्स का एक कारण यहां पे दिया है। कौन सा? इनइक्वालिटी इन ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेस, मतलब संपत्ति का असमान वितरण। इसके संदर्भ में थॉमस पिकेटी बहुत ही फेमस, उन्हीं के न्यूज़पेपर रिसर्च आर्टिकल से ये सारा मुद्दा उठा है। तो थॉमस पिकेटी सेड दैट प्रॉब्लम विद इंडिया इज नॉट रियलाइजिंग the kind of growth it is having right now will not sustain beyond a certain point if they don't control the income inequality or resource inequality. If we see the Oxfam report or any other report, we find that India is one of the leading countries in the world, more than America, which has the faster rise of rich people property than anywhere in the world. So
So concentration of wealth in the hand of top 20% or perhaps top 5% of the people is something which is very paradoxical in India's growth story. Solutions चर्चा करना है, पॉसिबल सोल्यूशन 4-5 लिख दो। थॉमस पिकेटी बोलते हैं कि देखिए इसको ठीक करने के लिए जब तक हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को सफिशिएंटली स्किल नहीं करेंगे नहीं होगा, वेल्थ टैक्स नहीं लगाएंगे तो नहीं होगा। अब वेल्थ टैक्स वेल्दी लोग शायद पसंद ना करें, एंड नो गवर्नमेंट विल टेक अ रिस्क परहैप्स ऑफ दैट, बट इट इज नेसेसरी। वेल्थ टैक्स इन इंडिया इज परहैप्स नेसेसिटी, बट किसी भी चीज के देखो साइड इफेक्ट होते हैं। अगर वेल्दी लोगों पे टैक्स लगाओगे तो वेल्दी लोग इंडिया छोड़ के दुबई जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कहीं और जाएंगे, एक समस्या आ जाती है। सो यू हैव टू मेक अ बैलेंस। टैक्स उतना ही और वैसे ही लेना चाहिए जैसे बादल समुंदर से पानी निकाल लेता है और कहीं और बारिश कर देता है और समुंदर को पता भी नहीं चलता। So tax should not feel exploitative or exorbitant in international comparison. लेकिन रिसोर्स इनइक्वालिटी अगर बढ़ती रही तो डेफिनेटली हमारे ग्रोथ का, इनकम का पैराडॉक्स बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा। हमें कुछ और इनोवेटिव तरीका लगा के इस पैराडॉक्स को खत्म करना चाहिए। तो डिस्कस करना था, आप इन सारी बातों को बता दीजिए, डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, इन कंटेम्पररी डेवलपमेंट मॉडल। अब कंटेम्पररी डेवलपमेंट मॉडल एक टॉपिक है ना। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गवर्नेंस का क्वेश्चन है ये। Not located close to the source of information and execution. देखो, source of information and execution है people और lower bureaucracy, और decision making और problem solving है political leadership, top leadership और top bureaucracy। इनका कहना है कि अभी का जो डेवलपमेंट मॉडल है, पॉलिसी ऊपर से बन रही है, लेकिन जो पॉलिसी लगा रहा है और जिनके ऊपर लग रहा है, उन दोनों के बीच में अभी भी गैप बहुत बड़ा। सो द डेवलपमेंट मॉडल इज क्वाइट सेंट्रलाइज स्टिल। तो सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस जब तक रहेगा, पीपल सेंट्रिक मॉडल, पॉलिसी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स या कुछ भी नहीं बनेगा, देन इट्स एग्जीक्यूशन एंड अदर थिंग्स विल ऑलवेज बी चैलेंजिंग, ऑलवेज बी चैलेंजिंग। तो कहीं ना कहीं जरूरत है इस पूरे डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीथिंक किया जाए, रीथिंक किया जाए। रूम में बैठ के सोचना कि क्या देश को लॉ की जरूरत है, और गांव में जाके सर्वे करके पता करना कि किस लॉ की जरूरत है, यही अंतर यहां पे दिखाया जा रहा है। और जो भी पीपल लेवल पे इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग है, जैसे पंचायती राज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उनका डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहाँ रोल है? ग्राम न्यायालय एक्ट आया जो ठीक से लागू हुआ ही नहीं आज तक, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया ठीक से लागू हुआ ही नहीं आज तक, ट्राइबल पंचायतें फंक्शनल ढंग से हो नहीं पाई। तो स्टिल दोज पीपल हु आर मेकिंग पॉलिसीज एंड डिसीजंस एट द टॉप, they are somehow made the system that they will take all the decisions. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जब नीचे से ऊपर आता है, इतना लेट हो जाता है कि कम से कम उस आदमी की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते तो काफी दिन बीत जाते, ये इररेलेवेंट हो जाता, इररेलेवेंट हो जाता। अब नाउ दिस थिंग
you have to write with examples. अब एग्जाम्पल में आप कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी या गवर्नेंस का मॉडल ले लो, ठीक है, एफडीआई पॉलिसी दिखा दो या कुछ और जीएसटी ही दिखा दो कि जीएसटी एक डेवलपमेंटल मॉडल है, ऊपर से बना। अब नीचे कितनी प्रॉब्लम हुई फेस करते करते, अभी तक जीएसटी में सुधार चल रहा है, जीएसटी में सुधार चल रहा है। अभी भी जीएसटी में राज्य का मुख्यमंत्री बता रहा है कि भाई हम नहीं मानेंगे, हमको तो घाटा होगा। भाई जिनके ऊपर लागू हो रहा है उनसे तो पूछो कि व्हाट काइंड ऑफ जीएसटी यू वांट। So the feedback mechanism is not very effective. The problem is the feedback mechanism in the creating governance model and decision making model. And people centric model and giving more role to the people in decision making and problem solving is necessity of the modern day governance. और इसी चीज को emphasize आप कर देंगे तो ये हमारा काम काफी हद तक हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगेन डिस्क्रिप्टिव है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड राइट्स एक्ट 2006 में बना था, टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन डिजिटल एरा। अब ये थोड़ा सा नया हुआ, ठीक है, कि इसको भी नया काम, तो आप क्या करेंगे, नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का नाम, पता, काम, 50 वर्ड्स, चिल्ड्रन चैलेंजेस इन डिजिटल एरा। प्रॉपर डेटा है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो बढ़िया से उसको लिखना है। एडवर्स इम्पैक्ट क्या है डिजिटल एरा का बच्चों पे, हर चीज का, उनके मेंटल, फिजिकल, लर्निंग, कॉग्निटिव, मॉरल, पांचों पॉइंट पे, है ना, इनको लिखना है। एग्जामिन द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड सजेस्ट मेजर्स द कमीशन कैन इनिशिएट टू टैकल द इश्यू। तो कमीशन क्या क्या कर सकता है वो बता देना है, वो तो कमीशन की ड्यूटी ही है, जो कर सकता है उसको यहाँ लिख देना है। और मेजर्स आप बता दो 2-4 कि ये किया जा सकता है। और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, नेशनल चाइल्ड राइट पॉलिसी और डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन वाली पॉलिसी, और ऑस्ट्रेलिया का कुछ एग्जाम्पल दे दो कि वहाँ 18 साल से बच्चों के लिए अलग रूल बन गया है, तो इंडिया भी बना सकता है। सजेशन देना है, कोई खराब नहीं है, एक देश ने किया है, ठीक है। तो इन सब बातों को लेके इस प्रश्न को लिखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट्स द डोमिनेंट किंगपिन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इज लिंक्ड विद इंडियाज ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, भारत तेल खरीद रहा है, मिडिल ईस्ट से ज्यादा खरीद रहा है, और इसीलिए मिडिल ईस्ट से हमारी दोस्ती संबंध प्रगाढ़ होने का एक इसका रीजन भी है। हाउ वुड, अब क्वेश्चन क्या है देखिए, हाउ वुड यू इंटीग्रेट एनर्जी सिक्योरिटी विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ट्राजेक्टरीज इन कमिंग ईयर। तो ट्राजेक्टरीज आपके दिमाग में फिक्स हैं। पहला, ट्रंप ने बोला है कि रूस से तेल खरीदोगे तो हम बैन करेंगे। हाउ टू डील विद यूएस एंड इट्स एनर्जी पॉलिसीज ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा, रशियन एंगल, रशियन तेल का क्या करें, मिडिल ईस्ट का क्या करें, और मिडिल ईस्ट में ईरान का क्या करें। इसके अलावा लैटिन अमेरिका अगला प्रोजेक्ट है, और एनर्जी सिक्योरिटी में सिर्फ तेल और हाइड्रोकार्बन पे नहीं रहना है, और भी एनर्जी सिक्योरिटी का अगर कोई कोऑपरेशन है इंटरनेशनल, उसको भी दिखाना है, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी में सिर्फ तेल नहीं आता है, रिन्यूएबल एनर्जी, नेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रांस के साथ, ठीक है। तो इन सारी चीजों को दिखाना है, और मिडिल ईस्ट के साथ हमारी दोस्ती का आधार मात्र तेल नहीं है, बहुत सारी और भी बातें हैं, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, geopolitical you can say congruence, population and cultural relation, human skills and capacities, history and other all those things। एनर्जी तो है ही, एनर्जी तो है ही। तो इन सारे ट्राजेक्टरीज पे 250 शब्द का क्वेश्चन है,
एक एक दो दो पैराग्राफ लिखते हुए चले जाना। और एनर्जी सिक्योरिटी को बताना है कि एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है कि भाई हमारे पास तेल नहीं है तो इजीली अवेलेबल हो, एफोर्डेबल हो, और सिक्योरिटी और सप्लाई चेन उसका इंटैक्ट रहे। और जब हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से लेंगे? और अगर हम अमेरिका से नहीं लेंगे या किसी और से लेंगे तो अमेरिका बोलेगा कि तुम मुझसे क्यों ले रहे हैं, वैसे भी अमेरिका पावर है, सुपर पावर है, और हम अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं फॉर मेनी थिंग्स। तो अमेरिका मे लाइक टू मिस यूज इट लाइक ट्रम्प इज ट्राइंग टू डू। बट यही सबसे इंटरेस्टिंग बात भी आप लिखेंगे कि व्हेन चैलेंजेस कम फॉरेन पॉलिसी बिकम्स मैच्योर। तो अभी ये जो प्रॉब्लम मिस्टर ट्रम्प थ्रो कर रहे हैं, इंडिया विल ओवरकम इट and become a more mature country in its foreign policy, including its energy security policy. ठीक है, last question for today. The reform process of United Nations, UN का रिफॉर्म remains unresolved. ठीक है, तो रिफॉर्म क्या है? यूएन का पहला पैराग्राफ लिख सकते हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, स्टाफिंग रिफॉर्म, बजट रिफॉर्म, कम से कम 3 लिख देना। क्यों नहीं हो रहा है? डेलिकेट इम्बैलेंस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट का सोचना अलग है, वेस्ट का सोचना अलग, ठीक है। और ईस्ट वेस्ट की लड़ाई यूएसए वर्सेस रूसो चाइना चला गया। एग्जामिन एंड क्रिटिकली इवेल्युएट ईस्ट वेस्ट पॉलिसी कन्फ्रंटेशन इन दिस रिगार्ड मतलब रिफॉर्म प्रोसेस। अब देखिए, रूस और चाइना तो खुद ही सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर है, तो अमेरिका से तो उनका कोई पंगा उस पे है ही नहीं। तो यूएस, रशिया, चाइना, इन तीनों का ना कोई एंटी है ना कोई प्रॉब्लम है, वो सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म पे प्रो इंडिया है, क्योंकि यूएन रिफॉर्म का लीडर इंडिया है, इन तीनों में से कोई नहीं। और ईस्ट वेस्ट की लड़ाई में इंडिया नहीं फंसा, यूएस तो सपोर्ट किया है ऑफिशियली कि भाई मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल का मिलना चाहिए, रशिया ने भी सपोर्ट किया, चाइना ने नहीं किया। तो प्रॉब्लम तो रूस और चाइना एंगल और रूस और अमेरिका एंगल में है ही नहीं सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म में, ठीक है। फिर भी यूनाइटेड नेशंस का रिफॉर्म एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और ईस्ट वेस्ट की लड़ाई में अगर सिर्फ यूएस और रशिया चाइना एंगल की बात करते हैं तो इसमें इंडिया को नहीं देखना इस पूरे एनालिसिस को मतलब लेम बना देता है। तो यू हैव टू ब्रिंग इन इंडिया इनटू दिस, बिकॉज इंडिया इज द मोस्ट वाइटल प्लेयर इन G4 कंट्रीज, इन L69 प्रोजेक्ट, L69 कंट्रीज, ये सारे ग्रुप, और आजकल C10 चल रहा है ग्रुप है, ये सब ग्रुप है यूएन के अंदर फॉर सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म एंड अदर रिफॉर्म्स। इंडिया सब में है, इंडिया के फेवर में सब है। तो इसमें एग्जैक्टली वो इंटैंगलमेंट नहीं है, बिकॉज रिफॉर्म्स जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल के बजाय कंसेंसस के लैक को दिखा रहा है, कंसेंसस के लैक को दिखा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इन तीनों के पास जब वीटो है और डोमिनेशन है तो फिर वो बाकी लोगों को देने के लिए वो आपस में टकराएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एंड एनीवे चाइना इज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया गेटिंग द सिक्योरिटी काउंसिल वीटो पावर सीट। तो वो प्राइमरी एक्चुअली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म न रूस के लिए, न चाइना के लिए, न यूएस के लिए, किसी के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इन पूरी बातों को लिख के, ये G4 L69 लिख के, इंडिया को बीच में डाल के, और ईस्ट वेस्ट कन्फ्रंटेशन को बिना मतलब के तूल नहीं देना है। हाँ, जो चल रहा है उनके में लिखो, लेकिन उसको यूएन के रिफॉर्म से मत जोड़ना, क्योंकि है नहीं बहुत ज्यादा उसका रिलेशन। और इसको लिख के आप पूरा अपना उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। So students, this was a kind of general discussion. समय का अभाव हमेशा रहता है और आज ही पेपर हुआ है, तो बस एक बताने की ये कोशिश है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए था। डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव इट फर्दर।
फर्दर रिसर्च करेंगे, 2-4 और मिलेगा, लेकिन रियल लाइफ टाइम में जब एग्ज़ाम देते हैं तो टाइम होता नहीं है। जो पहली बार दिमाग में आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। एंड दिस वे जितना मैंने बताया, अगर उतना भी अगर आप लिख के आए हैं या उसके 80% भी लिख के आए हैं तो ठीक ठाक नंबर इस पेपर में मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। फिर अगले पेपर में कभी मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।